नमस्ते, जय जिनेंद्र। आज हम जा रहे हैं राजस्थान की कैपिटल जयपुर देखने, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। और अगर राजस्थानी वाइब्स फील करनी हो तो इससे परफेक्ट प्लेस कोई और हो ही नहीं सकता। बट हम जयपुर कब जाना चाहिए? जयपुर थोड़ा हॉट सिटी है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, तो इसको घूमने के लिए परफेक्ट टाइम विल बी अक्टूबर टू मार्च, बिकॉज समर सीजन अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। विंटर्स में ये जयपुर बहुत ही अच्छा लगता है। सैटरडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे हम निकले गुड़गांव से जयपुर के लिए थ्रू दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे, एंड इट्स अ रियली वेरी लवली एक्सपीरियंस टू ड्राइव एट दिस रूट. It has a little higher toll, approx around 620 rupees, but it will save you around 1 hour also. So this route is far better than the previous old routes, and it has a service area also at every 25 to 30 kilometers where you can have a fuel stations, restaurants, you can stop, rest and relax and enjoy your trip through this route. Moreover, this route has a special arrangement that animals also can't enter at the route, so there is a less chances of accidents also. So हम आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट 11 बजे के आसपास जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर में हमने होटल पहले ही बुक कर लिया है booking.com से। आप होटल बुक करके जाएँ जो बाद में प्रॉब्लम ना आए। इसमें हमने होटल बुक किया आमिर फोर्ट से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में होटल रॉयल आमिर, एंड दिस होटल इज़ रियली नाइस। चार्जेस अराउंड 1800 to 2000 पर नाइट, सो 1 नाइट के लिए आप इसे बुक कर सकते हैं। इट्स हैविंग अ रूफ टॉप स्विमिंग पूल ऑल्सो where you can see the view of Amir Fort as well. To check into this hotel, we will move forward to the City Palace. होटल से सिटी पैलेस सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है, तो आप अपनी कार से भी जा सकते हैं या फिर आपको वहाँ से ऑटो भी डायरेक्ट मिल जाएगा। इसका एंट्री टिकट अराउंड 300 पर पर्सन है, विच इंक्लूड्स इट्स म्यूजियम ऑल्सो। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, एंड स्पेशली डोर्स पे जो पीकॉक डिज़ाइन है दैट इज़ रियली वाओ। ये सभा निवास है, यहाँ पे सभा वो करती थी राजा की, एंड इट्स अ रॉयल रेजिडेंस। सिटी पैलेस पूरा रॉयल रेजिडेंस, यहाँ पे रॉयल लोग रहते थे, तो यहाँ पे रॉयल ही म्यूजियम बनाया गया है। लाइक रॉयल आर्मी के स्टैचूज़ हैं, रॉयल हॉर्स, यू कैन सी इट्स अ रॉयल हॉर्स एंड फुली डेकोरेटेड, रॉयल ड्रेस, रॉयल चेस, एवरीथिंग इज़ रॉयल है। Inside City Palace there is a lovely restaurant also where you can have your lunch and rest for some time before moving to the next place. After City Palace around 2 p.m. you can go to the Jantar Mantar, that's exactly in front of the City Palace, and its entry ticket is 52 rupees per person. Here you can find a different type of sun clocks as you can see in the pictures, where shadow of the sun is used to calculate the time through these instruments, and it's really nice. After that we'll go to Hawa Mahal, and that is 1 kilometer away only from the Jantar Mantar. It's famous tourist attraction, so don't miss that at all. Basically its front view is really amazing as you can see. After visiting Hawa Mahal we went to the Wax Museum around 5 p.m. If you have kids, must add this place in your to-do list. 500 rupees you can visit the 7 museums inside there. Infinity Mirror is really beautiful, and there is a wax museum, so different type of statues are there where you can click your pictures and enjoy. There are different type of adventures available inside, like 3D gallery, 12D cinema, and 12D cinema is really amazing. From there around 6 p.m. you can go to the Jal Mahal, that is only 2.5 kilometer away from the wax museum. These all places can be covered on day 1 only. These are all within 2 to 3 kilometers. In Jal Mahal, inside entry is not allowed, and boating is also banned from there. Yes, you can roam around, click the pictures, and there is a market also outside the Jal Mahal, so you can enjoy. Go back to hotel list for the day. Next morning we will visit to the Amir Fort first. आमिर फोर्ट जाने के 3 ऑप्शन हैं, या तो आप अपने कार से भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ जीप से जाने के 450 रुपीज़ हैं, और एलिफेंट राइड करके जाना 1100 रुपीज़। अगर आप जीप से जाते हैं तो वो आपको रास्ते में पन्ना मीना का कुंड भी विज़िट कराते हैं, जो आमिर फोर्ट के रास्ते में ही आता है। सो आप जीप से जाते हुए 2 प्लेसेस एक साथ कवर कर सकते हैं। इट्स योर टाइम एंड मनी बोथ। आमिर फोर्ट विज़िट करते हुए आपको पूरा राजस्थानी वाइब्स आने वाला है, एंड इट्स अरावली रेंज में लोकेटेड है, सो यहाँ पे हिल स्टेशन वाइब भी आपको मिल जाता है। इसके आसपास पूरे चारों तरफ अरावली पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, एंड इसका जो आर्किटेक्चर है वो राजपूताना है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर विद इन द अरावली रेंज, दैट्स रियली अमेजिंग एंड मस्ट टू सी। ये आमिर फोर्ट की मेन एंट्री है, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन एंट्री में जाते ही अंदर आता है शीश महल। ये शीश महल पूरा कांच से बना हुआ है, और इसमें अगर कहीं पर भी आप दिए जलाते हैं तो ये पूरा जगमगा उठता है। जोधा अकबर की शूटिंग भी यहीं हुई है, प्रेम रतन धन पायो की, एंड दैट्स मोर ब्यूटीफुल। शीश महल के जस्ट सामने है मुगल गार्डन।
इस गार्डन में बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स एंड प्लांट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रानियाँ मॉर्निंग वॉक किया करती थी। गार्डन का फ्रंट व्यू है जहाँ से सामने आप बिल्कुल शीश महल दिखाई दे रहा है। देन इस गार्डन से थोड़ा अंदर जाते ये लेक है, ये है मोहता लेक। मोहता लेक इज़ मेन सोर्स ऑफ वाटर इन आमेर फोर्ट। इन मुगल टाइम ऑल्सो इसी लेक से पानी लिया जाता था आमेर फोर्ट के हर काम के लिए। एंड इसका टॉप व्यू ऊपर से पूरा अरावली रेंज के बीच में से ये लेक जा रही है एंड दैट रियली लवली। यहाँ से इसका मेन गेट भी दिख रहा है जहाँ से एलिफेंट्स एंटर करते हैं। इसलिए आमेर फोर्ट घूमने में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर लेक्स, गार्डन, शीश महल, इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको विज़िट करने में आपको 2 से 3 घंटे आराम से लगेंगे। इसके बाद आप वहाँ से बिरला टेम्पल विज़िट कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर बना हुआ है। नारायण टेम्पल है। बिरला टेम्पल के अलावा यहाँ पे पदमपुरा जैन टेम्पल जयपुर से थोड़ा आउटसाइड है, 50 किलोमीटर्स अराउंड, लेकिन अगर आप जैन है तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। पदमपुरा टेम्पल बहुत सुंदर बना हुआ है पदम प्रभु जी का, वहाँ जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। एंड ये टेम्पल हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ चौकीधानी उसके पास है, तो अगर चौकीधानी जा रहा है तो पदम प्रभु जी का टेम्पल ज़रूर विजिट। आफ्टर दैट हम चौकीधानी के पास ही एक होटल बुक कर लेंगे। का अपना भी रिजॉर्ट है, वो भी बुक कर सकते हैं, पर दैट इज़ कॉस्ट 7500 पर नाइट। और अगर आपको वो ज़्यादा लगे तो उसके आसपास भी बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे 1000 to 1500 पर नाइट में आपको होटल्स आराम से मिल जाएंगे। होटल में चेक इन करके अराउंड 5 PM हम चौकीधानी जाएंगे। ये कंप्लीट विलेज थीम है और इट विल बी रियली फन। यहाँ पे आप 5-6 घंटे आराम से बिता सकते हैं। तो ये 5 बजे ओपन होता है एंड इसका टिकट इज़ 900 पर एडल्ट। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाई गई हैं, लाइक आर्टिफिशियल लेक जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो, उसके साइड में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। आर्टिफिशियल एक जंगल बनाया गया है जहाँ पे आप डांस कर सकते हो। जंगल के साइड में एक मिनी वैष्णो देवी टेम्पल भी बनाया गया है जहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई करके आप दर्शन कर सकते हैं। के साथ डिफरेंट शोज़ भी होते हैं वहाँ पे, लाइक कठपुतली शो, मैजिक शो। कठपुतली शो में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डांस दिखाए जाते हैं। कठपुतली शो के बाद आप वहाँ पे मैजिक शो भी एंजॉय कर सकते हो। मैजिक शो के बाद वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल डांस होते हैं विच यू कैन एंजॉय, आप भी उनके साथ डांस कर सकते हैं। डांस के साथ वहाँ पे और भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है, लाइक गेम्स होते हैं। गेम्स में आपको मिनिमम चार्जेस 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़ होता है। उसमें आप बॉलिंग कर सकते हैं, आर्चरी कर सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं। इट्स अ रियली फन। गेम्स के बाद आप वहाँ पे मेहंदी भी लगवा सकते हैं। इसके बाद डिनर टाइम स्टार्ट होता है एंड वहाँ का डिनर में पूरे राजस्थानी स्टाइल में आपको फ्लोर पे बिठा के सर्व किया जाता है, पर आपको अनलिमिटेड फूड सर्व किया जाता है, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। एंड उसकी फुल राजस्थानी आइटम्स होते हैं, दाल बाटी चूरमा, खिचड़ी, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स एंड ऑल इज़ अमेजिंग, मस्ट ट्राई दैट। इन्हीं सब एक्टिविटीज़, गेम्स एंड डिनर के बाद आपके 5-6 घंटे आराम से बीत सकते हैं। देन यू कैन गो बैक टू होटल एंड रेस्ट फॉर द डे। देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप सुबह 6-7 बजे उठकर आप जा सकते हैं नाहरगढ़ फोर्ट या जयगढ़ फोर्ट देखने के लिए। दोनों ही फोर्ट्स अच्छे हैं, पर दोनों में से कोई भी एक देख लेना क्योंकि दैट्स सफिशिएंट फॉर दैट डे। उस फोर्ट के बाद आप अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देख सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे आइटम्स अवेलेबल हैं देखने के लिए। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के बाद ऑलमोस्ट प्लेसेस हमारे जयपुर के कवर हो चुके हैं एंड थर्ड डे है, तो देन वी विल गो बैक टू द गुड़गांव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।